and he has leveraged vast technological experience and presently handling various direct tax matters, internal audits, and focusing on technological upgradation, cost and process improvement, management audits, stock audits, and tax compliances. He is also involved in appeal and revision related matters on income tax, TDS as various forum. So he has a very simple approach in consulting his business clients. And today we'll be having, we are having him with us to discuss on, to share his view on HUF taxation and tax planning, how you can do your tax planning through HUF. And definitely I'm sure that everyone will get benefited by his words of wisdom. So we are just waiting for some more participants to join in, and then we are going to start this session. I would request everyone to be on mute, and if you have any questions and if you want to ask anything, तो आप chat box में अपने queries रख सकते हैं. We'll be taking all the queries at the end of the session. And if you want to speak to the speaker, then you can raise your hands, or you can just indicate in the chat box that you want to speak, and you can unmute yourself and speak. So I hope my voice is clear. Am I audible? Is it better now? Yeah, it's clear. Okay. So we have few more participants who are joining in, and then we'll be starting this session. See, generally, when it comes to taxation and when it comes to finance and income tax, we are all aware that we have to file our returns on time. So the due dates of filing the return was 31st July. But due to the new introduction of the new website and all, it's got postponed, and now the due date is 31st December. So you have to file your return on time, and this HUF is also a good tax planning tool wherein you get double exemptions. मतलब हमने सुना है कि 80C में 1,50,000 का बेनिफिट मिलता है, 1.5 लाख तक हम टैक्स सेव कर सकते हैं इन्वेस्ट करके. लेकिन आज ये मिथ क्लियर होगा कि 1.5 लाख नहीं, 1.5 लाख और मिलेंगे आपको, मतलब 3 लाख तक आप सेव कर सकते हैं. और पवन जी हमें बताएंगे कि कैसे HUF क्रिएट करके हम मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं, जहाँ पे टैक्स भी सेव कर सकते हैं और हम इन्वेस्टमेंट्स भी कर सकते हैं, हमारा कैपिटल कैसे अप्रिशिएट कर सकते हैं, वेल्थ कैसे बिल्डअप कर सकते हैं. बहुत सारे चीजें डिस्कस होंगी आज और बहुत सारे डाउट्स क्लियर होंगे आपके. सो जस्ट स्टे देयर फॉर सम टाइम एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट इट. जितने पार्टिसिपेंट्स हैं, मैं सबसे पूछना चाहूंगा कि कितने लोगों की HUF ऑलरेडी क्रिएटेड है यहाँ पे. और HUF क्रिएशन के लिए एक जो बेसिक एलिमेंट या बेसिक जो चाहिए होता है वो मैरिज चाहिए होता है. सो इफ यू आर मैरिड देन यू आर एलिजिबल टू ओपन HUF, आप HUF क्रिएट कर सकते हैं. तो व्हाट आई वांट टू आस्क इज कितने लोग यहाँ पे मैरिड हैं और कितने लोग मैरिड के होने के साथ साथ में HUF ऑलरेडी क्रिएटेड है. यू कैन रिप्लाई इन द चैट बॉक्स. और जो HUF बनाना चाहते हैं जल्दी से शादी कर लें, उसके बाद HUF क्रिएशन का प्रोसेस स्टार्ट हो सकता है. So we have 27 participants. I want to create HUF. Yes, today all the answers will be, all your queries will be resolved. जितने भी questions है उसका आंसर मिलेगा definitely. After today's sessions, you will be clear about the process of creation of HUF. And it's not a cumbersome process. सबको लगता है कि बहुत मेहनत करनी पड़ेगी शायद HUF बनाने के लिए. इतना डिफिकल्ट नहीं है. पवन जी में बताएंगे कि कैसे इजीली आप HUF क्रिएट कर सकते हैं और कैसे एक लीगल एंटिटी स्टार्ट कर सकते हैं और कैसे हम टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं. So I think now without taking much of the time, I request C. Pavan Lakotia ji to start his deliberation. Yes, sir, please. Sure. Good morning, everyone, and thank you, Alok ji,
I hope I'm audible properly. Am I? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Okay, perfect. Uh, 1 second, I'll try to share my screen. Do you see my screen? Yes, sir. It's this. Okay. So hope you all have had a good breakfast. आपने proper breakfast किया हो before, because the time जो आज Sunday का pick up किया, it's kind of rest day. जो probably people have some plan, but still काफी लोगों ने, as I could see, there are more than 30 participants, and I think it will increase थोड़े time में. But the topic is important. HUF, Hindu Undivided Family. I'll start off with this slightly, and then so to start off with, HUF means Hindu Undivided Family. So as you see in the picture, we have a family. It's a complete family, right? So we'll not talk about much about any individual family, but we'll talk about on the टैक्स प्लानिंग टूल. हम लोग टैक्स प्लानिंग टूल के बारे में बात करेंगे. आई विल कीप अ मिक्स ऑफ बोथ हिंदी एंड इंग्लिश. आई होप दैट्स ओके. सो एचयूएफ में बहुत सारे लोगों के बहुत सारे डाउट्स होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि कैसे बनती है, क्या फॉर्मेशन होता है, क्या टैक्सेशन होता है, क्या इसके इम्प्लीकेशन है, कौन कौन इंक्लूड हो सकता है, वाइफ हो सकती है, डॉटर हो सकती है, बच्चे हो सकते हैं, फैमिली मेंबर कौन कौन हो सकते हैं. तो अपन वन बाय वन बात करेंगे. पहले अपन एचयूएफ का कंसेप्ट एंड हायरार्की समझेंगे कि एचयूएफ क्या है आखिर, व्हाट इज द कंसेप्ट, और एचयूएफ में कौन कौन इंक्लूड होता है इस हायरार्की में फैमिली मेंबर से. एचयूएफ बनता कैसे है, पेपर में कैसे बनता है और एक्चुअली कैसे बनता है. पेपर एज एन लाइक डॉक्यूमेंटेशन में एचयूएफ का इनकॉर्पोरेशन कैसे होता है, और इज इट बाय नेचुरल और फिक्टिशियस, और व्हाट विल टॉक अबाउट दिस. एचयूएफ फॉर्म करने के क्या टैक्स बेनिफिट्स है, मेजर टैक्स बेनिफिट्स, अपन इसके बारे में बात करेंगे. टैक्स सेविंग्स क्या हो सकती है एचयूएफ से. सबसे बड़ा क्वेश्चन, आई थिंक मोस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट्स और मोस्ट ऑफ द बिजनेस ऑडियंस और क्वेश्चंस ऑन एवरीबडी कि एचयूएफ में कैपिटल कैसे डालें, हाउ टू स्टार्ट, हाउ टू ब्रिंग द कैपिटल इन एचयूएफ. इसमें कैसे अपन स्टार्ट करें और कैसे इसको कैरी ऑन करें फ्यूचर में भी, वो है. देन एचयूएफ का पार्टीशन हो सकता है क्या, एक बार एचयूएफ बन गई, अब इसको स्प्लिट करना है, डिवाइड करना है. हो सकता है एचयूएफ में बहुत सारी प्रॉपर्टीज हो, विच कैन बी शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स, इमूवेबल प्रॉपर्टीज. तो उसका पार्टीशन हो सकता है क्या, हो सकता है. तो उसका पार्टीशन कौन कौन कर सकता है, हाउ इट कैन बी डन, एचयूएफ पार्टीशन. देन सबसे इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन की गिफ्ट्स कैसे, एचयूएफ की प्रॉपर्टी में एचयूएफ क्या गिफ्ट दे सकता है और क्या गिफ्ट ले सकता है, एचयूएफ में क्या क्या पॉसिबिलिटीज है गिफ्ट से रिलेटेड. और लास्ट में अपन क्वेश्चन एंड आंसर्स. आप लोगों के मेरे प्रेजेंटेशन में भी मैंने कुछ क्वेश्चन आंसर फॉर्मुलेट किए हैं. सो आई ट्राई एंड कवर क्वेश्चन एंड आंसर्स एज मच एज पॉसिबल. और पोस्ट प्रेजेंटेशन भी अपन इसमें आप लोगों के कोई क्वेश्चंस और आंसर्स होंगे तो वो अपन कैरी ऑन करेंगे. तो विल स्टार्ट विद द बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि क्या कंसेप्ट है, क्या फॉर्मेशन हो सकता है, और डीप डाइव धीरे धीरे डीप डाइव करते हुए अपन एचयूएफ को कैपिटल कैसे बनाए, इसके बेनिफिट्स क्या है, बन गई तो पार्टीशन कैसे हो सकता है, गिफ्ट्स के क्या परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, उसके बारे में बात करेंगे. कंसेप्ट एचयूएफ, आप में से बहुत लोगों ने सुना होगा एचयूएफ, या बहुत लोगों ने, जैसे आलोक जी ने बनाया, हो सकता है बना भी रखा होगा. तो इज इट ए रियल एंटिटी और फिक्टिशियस एंटिटी. कोई ग्रुप या चैट बॉक्स में मैसेज करके बता सकता है कि ये एक रियल फिजिकल सामने दिखने वाली एंटिटी है या एक फिक्टिशियस है, जो इसका इनकॉर्पोरेशन कैसे होता है, इज इट रियल और फिक्टिशियस, एनीबॉडी, एनी आइडिया. people can chat, people can message in the chat box.
fictitious. Shakshi says fictitious. Anybody else? Why it's not real? Okay. So yeah, correct. It's a fictitious entity because HUF जो बनता है, it's an automatic creation. ये ऑटोमेटिकली बनता है, इसको बनाया नहीं जाता है, ये ऑटोमेटिकली बनता है। जैसे ही कोई मेल मेंबर की फीमेल मेंबर मैरिज होती है, सो इट कम्स इनटू द एग्जिस्टेंस। बहुत सारे मार्केट में लोगों की कंफ्यूजन है कि नहीं बच्चा होने के बाद ही HUF होता है, या मेल बॉय होने के बाद ही होता है, या फीमेल होने के बाद वो सब नल एंड वॉइड है। HUF ऑटोमेटिकली कम्स इनटू द एग्जिस्टेंस अपॉन मैरिज। आप बनाओ नहीं बनाओ, on paper it's a different thing, but yes, HUF is created between you and your spouse. So it's a fictitious entity. It is income tax point of view से ये एक separate entity है, like an individual. जैसे एक individual का, company का, partnership firm का taxation होता है, वैसे ही HUF firm का भी taxation होता है। तो income tax point of view से it's a separate unit altogether। दोनों का इंडिविजुअल का अलग टैक्सेशन होता है और HUF का अलग होता है। सॉरी। और HUF में बहुत सारे कंसेप्ट्स होते हैं जो अपन अभी वन बाय वन विल गो थ्रू अबाउट इट, कि कर्ता, मेंबर, को-पार्टनर। तो जो मोस्ट सीनियर मेंबर होता है, जो फैमिली का सबसे जरूरी नहीं है बट जनरली सीनियर मोस्ट मेंबर जो फैमिली का होता है वो करता होता है। जैसे आपके फादर की HUF में आपके फादर होंगे और आप उसके मेंबर या को-पार्टनर होंगे, और ही मैनेजेस जो भी HUF की एसेट्स होती है। सो HUF की हायरार्की HUF की हायरार्की बहुत बेसिक, एंड देन विल गो टू द डिटेल। एक बेसिक HUF, जैसे मैंने बोला, HUF आपका जैसे ही मैरिज होती है वैसे HUF का इनकॉर्पोरेशन ऑटोमेटिकली हो जाता है, हस्बैंड एंड वाइफ। फिर HUF के को-पार्टनर्स आते हैं। HUF के नीचे दो लोग होते हैं, दो टाइप के लोग होते हैं, एक तो होता है को-पार्टनर और एक होता है मेंबर्स। इन दोनों के अलग अलग राइट होते हैं, अलग अलग ड्यूटीज हो सकते हैं। कौन को-पार्टनर बन सकता है और कौन मेंबर बन सकता है, आप इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, बिकॉज आगे जाके ये मैं को-पार्टनर्स, मेंबर्स, इसके बारे में, टैक्स बेनिफिट्स के बारे में, गिफ्ट्स के बारे में और बाकी सभी के बारे में विल टॉक अबाउट इट इन डिटेल, कि भाई को-पार्टनर क्या कर सकता है, मेंबर क्या कर सकता है, एंड ऑल दोस। सो एक HUF में को-पार्टनर वो होता है जो उसकी फैमिली में बर्थ लेता है ना। सो इट्स अ काइंड ऑफ अ ब्लड रिलेशन। सो को-पार्टनर्स एक्वायर बाय बर्थ इन द इंटरेस्ट। मेंबर वो होते हैं जो बाय बर्थ फैमिली के पार्ट नहीं होते हैं, जो शादी के बाद आते हैं या लेटर ऑन ऐड होते हैं। तो जैसे को-पार्टनर्स आपकी फैमिली के सभी नीचे के जो भी वंशज है, ऑल लिनल असेंडेंट्स, जो डिसेंडेंट्स जो आपकी फैमिली के हैं, और आपके बच्चे जिसमें योर मेल एंड फीमेल, बोथ सन एंड डॉटर, वो आपके को-पार्टनर्स कहलाएंगे। को-पार्टनर्स वो होते हैं जो फैमिली में बर्थ के थ्रू आते हैं, बर्थ के थ्रू इनकॉर्पोरेट होते हैं। और मेंबर्स वो होते हैं जो फैमिली में बर्थ नहीं होता है। फॉर एग्जांपल योर स्पाउस, वाइफ, वो किसी और फैमिली में उन्होंने बर्थ लिया होगा, या हो सकता है आपके सन की वाइफ, या फिर और किसी की वाइफ। तो बेसिकली मेल मेंबर तो जनरली जो बाय बर्थ होते हैं वो को-पार्टनर होते हैं। मैरिड वुमन को-पार्टनर भी होती है और मेंबर भी होती है। मैरिड वुमन अपने फादर के HUF में तो को-पार्टनर होती है और अपने हस्बैंड के HUF में मेंबर होती है पोस्ट मैरिज। बिफोर मैरिज शी इज अ को-पार्टनर इन हर फादर HUF, एंड पोस्ट मैरिज शी इज a member as well as co-partner. She is both. She is co-partner in her father HUF and she is a member in her husband's HUF, right? So Hindu Succession Act में
को पार्टनर्स की कैटेगरी में मेल और फीमेल बोथ सन एंड डॉटर को बराबर कैटेगरी में रखा गया। और मेंबर्स आपकी क्लियर है मेरे हिसाब से। एंड डॉटर्स का इक्वल राइट है वोटिंग के केस में इन केस ऑफ पार्टनर। अब डिफरेंस क्या है? सबसे बड़ा जो मेन डिफरेंस है कि को पार्टनर एचयूएफ की प्रॉपर्टी में पार्टीशन डिमांड कर सकता है, मेंबर कैन नॉट डिमांड द एचयूएफ प्रॉपर्टी पार्टीशन। इस पार्टीशन के बारे में एक अलग से प्रेजेंटेशन, अलग से एक स्लाइड है जिसके बारे में अपन डिटेल में बात करेंगे कि को पार्टनर्स के पास में व्हाट आर द राइट्स ऑफ द को पार्टनर्स एंड व्हाट आर द राइट्स ऑफ मेंबर्स एंड हाउ कैन दे गेट द बेनिफिट्स। आई होप दिस को पार्टनर एंड मेंबर concept is clear. If anybody has any question, they can quickly ping because it's an important concept before we move forward. If there is no questions, यदि कोई questions नहीं है, I'll assume it is a no and move forward because it's important for everybody to understand who is co-partner, who is member. Yes, sir. Okay. Sir, I want to ask if I have created HUF in my name. Okay. माथुर HUF. Okay. तो इसमें मैं करता हो गया. मेरी wife is not co-partners. You are saying? Yeah, she is a member of your HUF. She is member, and the co-partners are my 2 kids. Yeah, she is a co-partner in her father HUF. Okay, thank you. So जैसे मैंने बोला, एक मैरिड वुमेन अपने फादर के एचयूएफ में तो को पार्टनर होती है और अपने हस्बैंड के एचयूएफ में मेंबर होती है। अब ये मेंबर और को पार्टनर की क्या राइट है, क्या लिमिटेशन है, क्या गिफ्ट दे सकते हैं, वो अपन आगे बात करेंगे। बट एज ऑफ नाउ और इन फ्यूचर सर, आपके जो बच्चे के भी जो वाइफ्स होंगी वो भी मेंबर ही होगी आपके एचयूएफ में। Sometimes I used to work in some bank, तो वहाँ पे co-partners wife को लोग बाग जो उनका डॉक्यूमेंट होता था वो एफिडेविट उसके अंदर लिखा हुआ रहता था। और इवन मैंने भी अभी लास्ट ईयर ही बनवाया अपना HUF, तो उसमें भी सीए ने को-पार्टनर बना दिया मेरी वाइफ को। नहीं, वो उनके सर अलग अलग राइट्स होते हैं। मैं आपको अभी जब पार्टीशन और फर्दर स्लाइड्स में आएंगे तो उसके बारे में बताऊंगा। बट वाइफ इज नॉट को पार्टनर, शी इज अ मेंबर इन योर एचयूएफ। अपन और आगे अभी डिटेल में और आपके सर कोई कंफ्यूजन और जो बैंक डॉक्यूमेंटेशन वाली बात कर रहे हैं वो अपन अभी आगे क्लियर कर लेंगे। सर एक क्वेश्चन आया चैट बॉक्स में कि इज हस्बैंड्स डॉटर्स हस्बैंड इज आल्सो मेंबर ऑफ एचयूएफ? डॉटर हस्बैंड इज नॉट अ मेंबर। आपके डॉटर के बच्चे मे बी बॉय और अ गर्ल और उनका हस्बैंड, दे आर नॉट द मेंबर इन द एचयूएफ। Thanks for the query. I'll move forward. Process of HUF formation. HUF बनता कैसे है ना भाई? अपन ने ये तो बात किया कि HUF TCS है और HUF ऑटोमेटिकली एग्जिस्टेंस में आ जाता है पोस्ट मैरिज। यस, इट इज करेक्ट। बट व्हेन इट कम्स टू डॉक्यूमेंटेशन और टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से HUF कैसे बनता है उसके बारे में बात करेंगे अपन। वैसे HUF कोई डॉक्यूमेंट से बनता नहीं है, it comes into the existence automatically, but how the taxation is being done and all will that's why we are talking about ki what is the process of HUF formation. So जैसे मैंने बताया, HUF एक सेपरेट पर्सन है अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। सो इसका एक ऑल टुगेदर सेपरेट असेसमेंट होता है, इसका सेपरेट ITR फाइल होता है, सेपरेट पैन कार्ड होता है, सेपरेट बैंक अकाउंट होता है, ऑल टुगेदर डिफरेंट फ्रॉम ए इंडिपेंडेंट। सो HUF बनता कैसे है? सबसे मोस्ट बेसिक, वैसे एज सच इसका रिक्वायरमेंट नहीं रहता है HUF बनाने के लिए, बट टू अप्लाई फॉर डॉक्यूमेंटेशन, और बैंक वाले डॉक्यूमेंटेशन मांगते हैं कि भाई आपने HUF बनाया, इसका प्रूफ दो, ये दो, वो दो। तो उसके लिए बहुत सारी प्रैक्टिस जो मार्केट में एस्टेब्लिश प्रैक्टिस है कि वो एक HUF का स्टैम्प पेपर के थ्रू एक HUF का डिक्लेरेशन बताते हैं जिसमें बोलते हैं कि ये मेरा HUF है और ये मेरे लोग फैमिली मेंबर है जो फर्दर इंक्रीज और डिक्रीज हो सकते हैं। जब वो एक, और वो
एफिडेविट या स्टैम्प पेपर के थ्रू एचयूएफ का जब डिक्लेरेशन हो जाता है तब आप एचयूएफ के पैन कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं। ये एक बेसिक डॉक्यूमेंट होता है जो पैन कार्ड के साथ में जाता है। तब एचयूएफ का एक सेपरेट पैन कार्ड नंबर आने के बाद में यू ओपन अ बैंक अकाउंट इन द हैंड नेम ऑफ द एचयूएफ व्हिच अ कर्ता और anybody else authorized on behalf of the karta can operate the bank account. पर्सनल इनकम जो मेंबर की होती है वो एचयूएफ की इनकम को नहीं ट्रीट किया जाता है बिकॉज एचयूएफ का खुद का इनकॉर्पोरेशन हुआ है, उसका खुद का पैन कार्ड है और एचयूएफ खुद एक सेपरेट रिटर्न फाइलिंग प्रोसेस करता है। इट्स वेरी बेसिक, नथिंग बिग, but yes, it's an important because ये formation, documentation and all is a very critical stuff in the moving forward. So अब आते हैं एचयूएफ के key tax benefit क्या है। One by one we'll talk about it. एचयूएफ जैसे बताया कि एक separate legal entity है under Income Tax Act। एचयूएफ को खुद की basic exemption limit होती है which is defined 2.5 threshold limit. It's not 5 lakh. People might get confused because इस HUF को 87A की जो रिबेट और रिलीफ होती है वो अवेलेबल नहीं होती है। तो बेसिक टैक्स की जो एग्जम्पशन है HUF में that is 2.5 lakh. In addition, HUF के खुद के नाम पे या फिर HUF की कोई प्रॉपर्टी है तो उस पे HUF होम लोन या कोई भी टाइप का लोन लेता है तो उसका बेनिफिट अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी मिल जाता है। एचयूएफ को सिमिलर टू इंडिविजुअल, जैसे इंडिविजुअल को एक बेसिक आपको 80C सेक्शन 80C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट व्हिच हैज लाइक एलआईसी या पीपीएफ या म्यूचुअल फंड, टैक्स सेवर एफडीज, होम लोन का प्रिंसिपल्स, ऑल दोज बेनिफिट्स आर एज सच अवेलेबल टू द एचयूएफ। Similar benefits, complete section 80C, benefit under house property income, health insurance, on any type of donation under 80G, आप कोई प्रधानमंत्री रिलीफ फंड में या whatever कोई भी टाइप का डोनेशन आप एचयूएफ के अकाउंट से करते हैं तो वो भी एचयूएफ को बेनिफिट अवेलेबल रहता है। और एचयूएफ सिंस प्रॉपर्टी होल्ड कर सकता है इन द नेम ऑफ द एचयूएफ, तो कैपिटल गेन एग्जम्पशन के जो भी इंपॉर्टेंट जैसे सेक्शन आप सेकंड प्रॉपर्टी खरीद लो या कोई गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट करो, सो वो सारे बेनिफिट्स अवेलेबल है। इन समरी एचयूएफ बेसिक एग्जम्पशन लिमिट एचयूएफ की जो टैक्स फ्री इनकम जो रहती है वो 2.5। अब इनकम कैसे बनाना है क्या बनाना है विल टॉक अबाउट इट इन नेक्स्ट स्लाइड, बट बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 2.5 lakh। एचयूएफ कैन गेट द बेनिफिट ऑफ द होम लोन, HUF can get the benefit of section 80C, complete section 80C, 80D, health insurance, 80G, donations, and most of the benefits of capital gain, like investing in bonds or something, and all those tax benefits are available to the HUF. If there are any confusions, you can put it into the chat box. मैंने एक basic example so which says tax savings due to HUF। भाई एक HUF होने का और नहीं होने का क्या फर्क पड़ता है? नॉर्मली आपकी इनकम में एक सैलरी इनकम हो सकती है, आपकी इनकम में रेंटल इनकम हो सकती है, एफडी इनकम हो सकती है, बिजनेस इनकम हो सकती है, सम और कैपिटल गेन मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया है, नहीं तो कैपिटल गेन की भी इनकम हो सकती है। दिस इज जस्ट एन इलस्ट्रेशन, बट हाउ टू वी अचीव इज अ डिफरेंट क्वेश्चन। सो people who are attending do not frame an opinion कि यार ये इतना easily tax benefit हो सकता है, this is how it can be done and all. Then for every head of income we need to think about what is right, whether it is legitimate. What if tomorrow income tax authorities raises the questions, are we good on the income tax paper side, etc. But if at all the things are good, proper है, सारी चीजें हैं, तो for example Mr. X जिसकी जो एक इंडिविजुअल है उसकी एक सैलरी इनकम है, उसकी रेंटल इनकम है, रेंटल इनकम उसकी खुद की उसने सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी से भी किया है
और कोई उसकी इनहेरिटेड प्रॉपर्टी फैमिली मेंबर्स के थ्रू है, उसकी इंटरेस्ट है, इनकम है एफडीआर पे, उसका एक बिजनेस भी चलता है, तो सारी ग्रॉस इनकम मिला के और उसको सेक्शन 80C 80D के सारे बेनिफिट मिला के उसके फॉर एग्जांपल जी इलस्ट्रेटिव एग्जांपल मान लो 25 लाख 26 लाख रुपए इनकम होती है, तो उस पे अज्यूमिंग दैट ही इज नॉट हैविंग एचयूएफ, मिस्टर एक्स खुद के हैंड में ही सारी इनकम टैक्सेबल है, then the gross taxation liability comes somewhere this. Now what if Mr. X का HF exist करता है, salary income will be obviously taxable in the hands of Mr. X, so it cannot be diverted because HF cannot get the salary income, right? Rent he can divert, for the own property he cannot, because वो divert करेगा तो भी clubbing करके वापस taxability उसके account में ही आ जाएगा। इनहेरिटेड प्रॉपर्टी को उसको फैमिली से मिला है तो वो एचयूएफ में डाइवर्ट कर सकता है। इंटरेस्ट यदि कोई खुद की जो रेंटल इनकम आती है इनहेरिटेड प्रॉपर्टी से उसका कोई इंटरेस्ट है, एचयूएफ कैन डू द बिजनेस, तो बिजनेस इनकम है तो वो भी डाइवर्ट कर सकता है। तो यदि मिस्टर एक्स का एचयूएफ एग्जिस्ट करता है तो उसके हैंड में सिर्फ दो ही इनकम टैक्सेबल होगी, सैलरी और रेंट, और उस पर टैक्स लायबिलिटी ऑलमोस्ट 2 लाख रुपए आती है। और एचयूएफ के आने से क्या हुआ कि रेंटल इनकम एचयूएफ में जा सकती है, दिस इज पॉसिबल, एचयूएफ कैन डू द इंटरेस्ट, कैन अर्न द इंटरेस्ट एंड अदर बिजनेस इनकम जो भी होता है वो एचयूएफ अर्न कर सकता है। सो यू सी दिस इज हाउ समबडी कुड सेव द टैक्स बेनिफिट, बट हाउ टू अचीव, हाउ टू गेट इट इज how to create the capital, how to earn, how to do the business of HUF is all those we'll talk about in the next slide, and there are altogether different questions. But taking all the incomes into the consideration, मैंने जैसे capital gain income नहीं लिया है, but यदि हाँ HUF can do the share trading, F&O, HUF can do that, so वो income भी consider किया जा सकता है. So salary, rental, FD, other source, business income, and all those can be part of HUF. HUF can vary. अपन नेक्स्ट कमिंग स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे कि HUF क्या, कैसे इनकम, कौन कौन सी इनकम ले सकता है, और वो ले सकता है तो कैसे कैसे ले सकता है, एंड हाउ एंड ऑल इट कैन बी डन. दिस इज जस्ट अ बेसिक एग्जांपल व्हिच आई थॉट एट लीस्ट विल मेक अप अ माइंड कि दिस इज हाउ द टैक्सेशन ऑफ द इनकम कैन बी डन इन द हैंड्स ऑफ डिफरेंट एंटिटीज व्हेन इट कम्स टू आइदर इंडिविजुअल और HUF और बोथ टेकन टुगेदर. थोड़ा सा एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ क्या? या ये जो आपने स्लाइड दिखा रहे हैं, आई कैन हार्डली हियर यू. ओके ओके, अभी ठीक है? हाँ इट्स बेटर जी, हाँ ठीक है. ओके, थैंक यू. एक्चुअली ये जो स्लाइड ली है इसमें आपने एक तो इंडिविजुअल को पकड़ा है और दूसरा एक HUF एक्सेस करके है एंड एक सिंगल HUF है. ये थोड़ा नहीं, ये स्लाइड है, फर्स्ट कॉलम है कि HUF एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ओनली मिस्टर एक्स है. अच्छा, सेकंड स्लाइड है कि मिस्टर एक्स और HUF सेकंड और थर्ड है ना. तो ये आप देखिए सैलरी इनकम मिस्टर एक्स के जा रही है, रेंट की ओन प्रॉपर्टी इनकम मिस्टर एक्स के जा रही है, रेंट की इनहेरिटेड प्रॉपर्टी. सो सेकंड एंड थर्ड यू नीड टू टेक टुगेदर व्हेन द HUF एग्जिस्ट. मतलब मिस्टर एक्स HUF एग्जिस्ट करता है तो मिस्टर एक्स के अकाउंट में पॉसिबल क्या क्या इनकम है और HUF में नेक्स्ट टेकन टुगेदर. आप B एंड C टेकन टुगेदर इज योर द बेनिफिट आउट ऑफ A. ओके. बेसिकली पवन सर ने जो फर्स्ट कॉलम है उसको बाइफरकेट कर दिया सेकंड और थर्ड में, कि अगर इंडिविजुअल है तो कैसे HUF के साथ प्लानिंग कर सकता है, कुछ इनकम जो है जैसे रेंटल इनकम है वो डाइवर्ट कर सकते हैं इंडिविजुअल से HUF. एम आई करेक्ट सर? या दैट्स करेक्ट. या ये थोड़ा कॉन्सेप्ट अभी क्लियर नहीं था. यहाँ ये क्या हम आगे पढ़ने वाले हैं अभी या जानने वाले हैं, या ये हम आप ये सोच रहे हैं कि ये हमें अंडरस्टूड है उसके बाद आगे चल रहे हैं? सॉरी, अब मीन्स ये कहने का कि ये जो चीज है कि हम कैसे इंडिविजुअल से HUF में जो इनकम ले जा सकते हैं वो अभी टॉक अबाउट इन द नेक्स्ट स्लाइड्स. आई एम जस्ट टॉकिंग ओके. व्हाट इज द बेनिफिट इफ, बिकॉज HUF आप देखिए यहाँ पे आपने सिर्फ टैक्स सेविंग के मामले में मिस्टर एक्स व्हेन ही वाज अलोन he could do only 1.70 lakh, right? But when he is both alone as well as he has a HUF, if exist, तो उसको tax benefit मिल गया because he can do both 80C, 80D, 80Z, whatever, right? And
नाउ सिंस ही हैज बोथ, सो कैसे इनकम अलग अलग हेड में कैसे टैक्सेबिलिटी आ सकती है, बट हाउ ही इज डन विल टॉक अबाउट इन द नेक्स्ट स्लाइड्स, इज व्हाट विल कवर. Okay, sir. Okay, thank you. Yeah. Sir, Okay, sir. one more question. Yeah. इसमें जो FD है, इंटरेस्ट ऑन FD, ये इंडिविजुअल के नाम में है. FD तो इंडिविजुअल के नाम में, पर हम इंटरेस्ट उसमें HUF में कराएंगे या FD भी HUF के नाम से ही? नहीं, HUF की यदि मान लो खुद की इनकम है और उसकी खुद की कैपिटल है, तो HUF के अकाउंट में भी आप FD करवा सकते हैं. नहीं, वो तो करवा सकते हैं, लेकिन अभी जो एग्जांपल जो स्लाइड सामने है, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट कि मिस्टर एक्स की FD है 50,000 की, या इंटरेस्ट ऑन FDs है यदि 50,000. मेरे इस केस में ये assumption है, इफ यू सी लास्ट पॉइंट्स इन द स्लाइड, कि भाई ये जो FD का इंटरेस्ट है, मैंने ऐसा एज्यूम किया है कि ये कोई गिफ्ट्स वगैरह से आया हुआ था. हाँ, बट यदि दोनों है, मिस्टर एक्स की भी है विच ही कैन नॉट बाइफरकेट, तो ऑब्वियसली फिर मिस्टर एक्स के हैंड में टैक्सेबल होगा. जी. सो फॉर एग्जांपल मेरे खुद के अकाउंट में FD आ रहा है एंड मैं उसको डाइवर्ट कर देता हूँ HUF में, दैट इज नॉट द राइट वे, राइट. जो HUF की इनकम है उसी से मैं इन्वेस्टमेंट करूं FD में, और वो इन्वेस्टमेंट की इनकम कंसिडर्ड है. इट्स जस्ट अ हाइपोथेटिकल एंड बेस्ड ऑन सम assumption. Hello. Yeah, Can you explain it again? Which income can be diverted? we'll talk about it in the next slides. Okay. So as most of you may be waiting कि how to bring or generate the capital in the HUF में capital कैसे बना सकते हैं. We'll cover point by point. I'll try and cover all your aspects, and then if there are any further queries, I'll cover it, because हो सकता है आपकी कोई query हो जो आगे 1 या 2 स्लाइड में further clear हो जाए. तो I'll cover 1 or 2 slides and then we'll talk about it, and then I'll open if there are any for. First, as we said, on the occasion of the marriage, ये जी कोई मैरिज में गिफ्ट्स आते हैं, कैश गिफ्ट्स within the reasonable limit, so that you could call कि भैया ये मेरी इनिशियली ये मैरिज के the occasion of the marriage I got so and so amount of gifts. So that is what there is a one way. यदि आपकी फैमिली का कोई ancestral business है, if your family has already some business and which they give it to the HUF, or then HUF can run the business. यदि तो वैसा कोई ancestral business है जो HUF में already चल रहा था, जैसे फॉर एग्जांपल ऑलरेडी, एंड देन इस HUF में डाइवर्ट होकर ancestral business. गिफ्ट्स, यदि HUF को गिफ्ट मिले, गिफ्ट किस किस से मिल सकता है, कैसे कैसे मिल सकता है, I'll try and cover in the next also in detail, but for now गिफ्ट्स, यदि HUF को गिफ्ट मिलता है तो वो अमाउंट, certain amount गिफ्ट में, जैसे फॉर एग्जांपल 50,000 is a certain amount which is exempt. Beyond that it is taxable. So for example अपन ने बात किया कि HUF की बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 2.5 लाख रुपीस होती है, राइट. सो यदि कोई somebody gifts, if somebody has proper capital in his or her own name, और वो अपने HUF को गिफ्ट करता है थ्रू सम गिफ्ट डीड और समथिंग, सो 50,000 तक तो एग्जम्प्ट है, बट बियॉन्ड दैट इट इज टैक्सेबल. बट गिवन दैट 2.5 लाख रुपए तक HUF में कोई टैक्स नहीं है, since there is no tax within the threshold limit of 2.5 lakh. So even if you receive the amount, say for example किसी से 2 लाख रुपए लिए, आपके कोई अननोन बंदे ने HUF में 2 लाख रुपए, बिकॉज उसके पास कैपिटल थी, अननोन बंदे के पास कैपिटल थी, उसने या आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के पास वाइट में कैपिटल है, उन्होंने 2 लाख रुपए गिफ्ट किए, बट 50 लाख रुपए तक तो एग्जम्प्ट है, बट बियॉन्ड दैट 1.5 लाख रुपए टैक्सेबल है, बट स्टिल इट विल नॉट बी टैक्सेबल बिकॉज HUF का बेसिक एग्जम्पशन लिमिट इज 2.5 लाख. तो 2.5 लाख रुपए तक आप गिफ्ट करोगे, गिफ्ट लोगे इवन फ्रॉम फ्रेंड्स और रिलेटिव, इट विल नॉट बी टैक्स बिकॉज ऑफ द वर्च्यू ऑफ बेसिक एग्जम्पशन लिमिट अवेलेबल. किससे ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, एज आई सेड आई विल कवर इट इन द नेक्स्ट पॉइंट्स, बट
द थीम इज, यदि आप मान लो एचयूएफ में एटीसी, आपने कोई एलआईसी एटीसी के इन्वेस्टमेंट्स कर रखे हैं, तो ये 2.5 लाख 1.5 लाख रुपए और तो 4 लाख रुपए हो जाएगा. So it's not about becoming money, but it's about becoming, even if you get more than 50,000, but given that there is a overall benefit available of 2.5 lakh, so that is how this can be managed. But obviously जो देने वाला है उसके पास में कैपिटल होनी चाहिए, राइट. एचयूएफ की खुद की कोई इन्वेस्टमेंट है, और which may be in the form of sell shares, mutual funds या बिजनेस, तो उस इन्वेस्टमेंट से कोई इनकम आती है, तो ऑब्वियसली बट नेचुरल है कि वो एचयूएफ की कैपिटल को ही जनरेट करेगी या बढ़ाएगी. एचयूएफ के नाम पे कोई प्रॉपर्टी है, ये दो टाइप से हो सकती है. आइदर एचयूएफ ने खुद के पैसे से एक्वायर किया है, एक्वायर्ड फ्रॉम प्रॉपर्टी, और एचयूएफ को विल मिला है बाय वे ऑफ सम एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी. आपकी फैमिली की कोई प्रॉपर्टी है जो एचयूएफ, आपके फादर ने विल में दिया हो एचयूएफ की आपको, या गिफ्ट व्हाटएवर, तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, तो उसकी रेंटल इनकम एचयूएफ में टैक्सेबल हो जाएगी. या एचयूएफ ने खुद ने प्रॉपर्टी एक्वायर की है थ्रू देयर ओन सोर्स, तो वो उसके हैंड में आ जाएगी. इसके अलावा एचयूएफ सारे बिजनेस कर सकता है, बिजनेस मॉडल कर सकता है, प्रॉफिट जनरेट कर सकता है, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम ले सकता है, शेयर्स और ट्रेडिंग में ट्रेड कर सकता है. बट इंपॉर्टेंट इज एचयूएफ cannot earn the income from salary, because इसके लिए आपके, because HUF क्या एक fictitious entity है, it's a pool of people, it's a pool of family, it's a pool of couple of folk, family member. So but salary is based on some skill, right, or profession. HUF cannot earn professional income. It is avoidable, it is not suggested, it may create a litigation in the future, because salary or professional being a chartered accountant, being a doctor, being a advocate, so professional income और salary income ऐसी है जो some personal skills से आती है, some personal knowledge. lot of people can think about कि भैया मेरी ये personal income है, professional income है या salary income है, can I take this in HUF? Suggested answer is no, because it is earned through some personal skills, professional skills. So you cannot, what you can do the business where you can have employees, you can do proper trading income, proper manufacturing business, whatever business you want to do, you can do it in the name of HUF. HUF can have the house property, usse through income aa sakti hai. HUF can invest in the shares, mutual funds, bonds, FDs, but it is not suggested to have the salary or professional income or any income which is out of some personal skills कि भैया ये किसी एक फैमिली मेंबर की पर्सनल स्किल है और it seems कि ये आपने एक डाइवर्ट किया हुआ इनकम है. That sort of income is not suggested to be the income of HUF. HUF लोन ले सकता है शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, और HUF लोन दे भी सकता है नॉन मेंबर से, जैसे मैंने बताया फ्रेंड्स जो HUF के मेंबर नहीं है उनसे लोन ले सकता है. से फॉर एग्जांपल आपने स्टार्टिंग में लोन लिया, उससे आपने बिजनेस किया एंड ऑल दोस, यस देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच कैन बी डन, थॉट अबाउट, बट दिस इज हाउ HUF कैन डू द बोरोइंग्स. या कोई ऐसी चीज हो जो HUF को बाय वे ऑफ विल मिला है या बाय वे ऑफ इनहेरिटेंस थ्रू द फैमिली, HUF कैन बिकम ए पार्टनर ऑफ द फर्म. HUF अपन बात करेंगे तो HUF can contribute funds or capital into the partnership and share in the profit arising to the HUF. इसके बारे में भी अपन थोड़ा वो डिटेल में बात करेंगे. But these are some of the example. This is not the final list. This is not the end of the list. This is an illustrative list. In each of the point we need to think about the fact क्या है इनकम की, that needs to be considered. Not just said कि भैया because मेरा ये बिजनेस है या मेरे because मेरी रेंटल इनकम है जिसमें पता लगे टाइटल डिस्प्यूटेड है, या something which you do probably a member अपने अकाउंट से ट्रांसफर कर देता है, कि we'll talk about that also in the coming slides. But these are some of the examples, just to repeat, on the occasion of marriage, business, ancestral business, HUF gets अपने इसके बारे में काफी बात किया. इनकम थ्रू
interest business HUF की rental income which either acquired through self-acquired property or through received through will or gift. HUF can take the loan from the known member, short or long term, or any gift or something. So these are the some of the ideal ways where now in next 1 or 2 slides we'll cover in detail about like gift, how to do the business, how to do the and all that. But yes, key points are, so that was just an illustrative list. Now when I talk about gifts, so there can be two, either HUF gift दे सकता है या HUF gift दे सकता है. There can be two options, gifts to HUF or gifts by HUF, right? We'll talk about gifts to HUF. कौन दे सकता है HUF को गिफ्ट? मेंबर, को पार्टनर या मेंबर दोनों इंक्लूड होता है, बिकॉज हर को पार्टनर मेंबर होता है HUF की फैमिली का. मेंबर ये टैक्सेबल नहीं होता है if any amount HUF का, but it is not suggested, it is not beneficial because income tax act के according क्लबिंग का प्रोविजन अप्लाई हो जाएगा. तो इस जो भी अमाउंट आप एक मेंबर या उसका को पार्टनर HUF को ट्रांसफर करता है, तो उससे जो भी इनकम होगी वो इनकम उस रेस्पेक्टिव पर्सन के वापस ऐड हो जाएगा. Law is very clear. So clubbing provision will apply in case a member gives any amounts to the HUF. Relative of member, as I said, for example, आपका HUF है, मिस्टर एक्स का HUF है, उसके वाइफ है, उसके 2 बच्चे हैं और बाकी लोग फैमिली मेंबर है. अब मिस्टर एक्स के रिलेटिव्स, उसके दादा दादी, इवन उसके मदर फादर या उसकी वाइफ के मदर फादर या उसका ब्रदर, वो लोग कोई भी गिफ्ट करते हैं जो रिलेटिव्स है, इट विल बी टैक्सेबल बट इट इज एग्जम्प्ट अप टू 50,000. या फ्रेंड्स और स्ट्रेंजर्स, एनीबॉडी, एनी फ्रेंड्स, फैमिलीज, फ्रेंड्स नियर एंड डियर, वो भी टैक्सेबल है बट एग्जम्प्ट अप टू 50 लाख. बट एज आई सेड, इफ यू डू नॉट हैव एनी अदर इनकम इन द HUF, कोई ऐसे स्ट्रेंजर, फ्रेंड्स और रिलेटिव से इनकम लेते हैं या गिफ्ट्स लेते हैं, नॉट इनकम, गिफ्ट्स लेते हैं, उनकी प्रोवाइडेड प्रॉपर कैपिटल हो, तो 2.5 लाख रुपए तक का तो वैसे भी HUF में टैक्स एग्जम्पशन है 2.5 लाख, तो इट विल नॉट बी टैक्सेबल. सो दीज आर द वेज, these are the possible combinations and HUF can get the gift through member. What is the implication? Because clubbing apply होगा, even if you gift और उस गिफ्ट से HUF कुछ इनकम अर्न करता है, तो that income will be taxable in the hand of the person who has given the gift. Relative of member exempt up to. Somebody is talking. Maybe. Keep on mute, please. All the participants are request all everyone to be on mute. I'll take all your points, but as I said, once I cover it up, then probably a lot of your other doubts will also get cleared. Gifts to HUF. Now we'll talk about gifts by HUF. कि HUF gifts किनको दे सकता है? Generally speaking, जब तो एक अकाउंट खुला. Pawan ji, I mute you all. Please unmute yourself. Okay, I have done it. Yeah, thank you. So just be focused, guys. Maybe all of your doubts will get cleared, and then Q&A will take it. Gifts to HUF is clear. Now gifts by HUF. क्या HUF gift दे सकता है? अपन ने पहले तो बात की HUF gift ले सकता है. Now whether HUF can give the gift. Gift received by member. For example, HUF की कैपिटल है और HUF अपने मेंबर को गिफ्ट देता है, बट इट इज नॉट एडवाइजेबल बिकॉज HUF का taxation and HUF generally speaking HUF doesn't give the gifts because उस पे पूरी फैमिली का राइट होता है. HUF प्रॉपर्टी हैव अ कॉमन राइट. आपके HUF में आपकी वाइफ का भी शेयर होगा, आपके बच्चों का भी शेयर होगा या उनके बच्चों का भी शेयर होगा. So that is why it is not advisable कि HUF can give the, because it cannot be done until and unless, because it's a kind of a common right or benefit or common thing available. Business
Yes, HUF can be proprietor of one or more than one business. HUF राजेश सेठी जी कुछ मूव कर रहे हैं. HUF can be, I don't know how to take it back. आपको पता है आलोक जी ये? हाँ मैं करता हूँ. Just a Okay. minute. So business, as I said earlier slide, HUF can do one or more business. It can be manufacturing, trading, wholesale, retail, operating truck, vehicles. HUF can do that. और उसका अपना बिजनेस का अलग नाम भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल व्हाटएवर मिस्टर एक्स HUF, मिस्टर वाइज एंड ब्रदर्स, जो भी आप अपने बिजनेस का नेम रखते हैं वो कर सकते हैं. But HUF cannot do profession or salary income. Partner HUF since being a fictitious entity, अपन ने स्टार्ट में बात किया था, HUF cannot be partner in the firm, but HUF can be partner through their karta. So a karta authorized by HUF can be the partner in any partnership firm or LLP, but HUF themselves. And उसका आउटकम क्या होगा कि जो इनकम होगी थ्रू इन्वेस्टमेंट इन दैट पार्टनर, फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो HUF में टैक्सेबल होगी. बट जो रेम्युनरेशन होगा इज टैक्सेबल बिकॉज सैलरी इनकम, एज आई सेड अर्लियर, HUF कैनॉट अर्न. तो सैलरी इनकम जो होगी वो कर्ता के हैंड में ही टैक्सेबल होगी. So clear? I'll just make it more clear. So HUF can be partner in the partnership firm through their karta. कोई remuneration वगैरह मिलता है तो that will be taxable in the hands of the karta. And if HUF has given capital through their own source, तो उसकी जो यदि partnership firm interest on capital allow करती है वो that will be taxable in the hands of HUF. रियल एस्टेट, कैन HUF होल्ड द प्रॉपर्टी? एज अपन ने भी थोड़ी देर पहले बात किया, सेल्फ ऑक्यूपाइड रेसिडेंशियल हाउस HUF या फिर इनहेरिटेंस से अर्न कर सकता है. उसमें रेंटल इनकम में जो भी अपने को नॉर्मली इंडिविजुअल को जो 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन अवेलेबल रहता है वो HUF को भी रहता है. सैलरी कमीशन अपन ने ऑलरेडी बात कर लिया. देयर कैन नॉट बी इनकम फ्रॉम सैलरी एज आर्टिफिशियल पर्सन HUF. नो कमीशन ऑन ब्रोकरेज इनकम. But lot of cases people does it because इसमें कई बार litigation का point है. But if law मना नहीं करता है, law doesn't say anything in clear कि भैया you cannot have the commission or brokerage income. But it is a litigation point because यदि if assessee can prove कि भैया ये जो मेरे को business में ये जो income मिला है ये it is subject to so and so, मेरे already मेरा business चल रहा है उसकी वजह से चल रहा है, and then it is probably advisable and safer side you can have, but ideally speaking no, because it will create a litigation sort of. Few question answer which I have prepared, I'll talk about it and then we'll take your questions. Alok ji, this can be removed or something? बीच में You can try resharing. Second, I'll do that. That's what I thought. Okay, I guess people can see it. I was looking for some eraser. Okay. Thanks. So, few sample questions, FAQs sort of. Will any clubbing provision apply in case of transfer of assets to HUF by its member? कि भाई आपका कोई क्लबिंग प्रोविजन या इनकम टैक्स में वापस आपकी इनकम में टैक्सेबल हो जाएगा, यानी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू HUF विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, यानी आपने ऐसे ही ट्रांसफर कर दिया. यदि आपने प्रॉपर पैसा लेके ट्रांसफर किया है थ्रू मार्केट रेट और व्हाटएवर रीजनेबल थिंग तो इट्स ओके. बट यदि ट्रांसफर आपने किया है विदाउट
एडिक्वेट कंसिडरेशन, तो जो भी आपकी एंटायर इनकम होगी दैट विल बी एडेड बैक टू द पर्सन हु हैज ट्रांसफर्ड द प्रॉपर्टी। वेरी क्लियर। ये यदि मेरा एचयूएफ है और मैं मेरी प्रॉपर्टी इसमें, वन सेकेंड, I request everyone to share your questions in the chat box. We will be taking all the questions at the end of the session. तो किसी का भी अगर कोई भी सवाल है तो वो रख दें और पवन सर लास्ट में क्वेश्चंस देंगे सबके। राइट, सो Please. आई वाज टॉकिंग फॉर एग्जांपल कि मेरा एचयूएफ है और मैंने मेरी कोई प्रॉपर्टी एचयूएफ में ट्रांसफर कर दिया, मे बी विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, तो जो उस प्रॉपर्टी की रेंटल इनकम होगी, इवन इफ यू टेक इट इन द हैंड ऑफ एचयूएफ, but if a member transfers, right, property, so it will be taxable in the hands of the person who has transferred. In this case मेरे हैंड में ही वापस अगेन क्लबिंग प्रोविजन से अप्लाई, यदि एचयूएफ का कोई मेंबर विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, विदाउट रीजनेबल रेट ट्रांसफर करता है। स्टैम्प ड्यूटी चार्जेबल है, probably this was in some other context, but yes, यदि आप अपनी प्रॉपर्टी, but there are some basic benefits, exemptions available. I'll not go in detail, but yes, stamp duty chargeability रहती है, but until unless it is exempt by state government. Can a person write a will to HUF for transfer of property? Yes, HUF can write will for transfer of property. Can we use the इनकम अर्न बाय एचयूएफ फॉर द हाउसहोल्ड एक्सपेंसेस? तो ये अपन ने इनकम के बारे में खूब बात कर ली, अपन ने बात किया आईटीसी, एटीटी, ऑल दोस बेनिफिट्स आर अवेलेबल टू द एचयूएफ, बट कैन एचयूएफ डू हाउसहोल्ड एक्सपेंसेस जो भी आपकी, या फिर एचयूएफ की ड्राइंग्स हो सकती है, या एचयूएफ खुद अपने फैमिली मेंबर्स के बेनिफिट के लिए हाउसहोल्ड एक्सपेंसेस का ड्राइंग्स कर सकता है? यस, लाइक हाउ अ पर्सन डज drawings through their own income, HUF can also do. Can HUF give loans for the business? Yes, HUF can give loans to the karta, co-partners, or any other person for setting up business and charge interest on the loans. Also, the interest paid on loan taken is fully taxed. So HUF can take the loan and can give the loan to the karta or co-partner or to somebody else. Market में बहुत चलता है, that's common practice. So HUF can take the loan, HUF can give the loan. It is suggestible that you do charge the interest for any loan given out of the HUF, and you pay the interest for any loan taken in the hand of the HUF. और ये जो भी interest की expenditure होगी, if you receive it will be taxable, if you pay it will be deductible in the hand of HUF. Can HUF give salary to कर्ता और मेंबर? भी अपन ने बात किया कि HUF पार्टनर बन सकता है HUF थ्रू इट्स कर्ता, तो उस जो कर्ता की, और HUF खुद सैलरी नहीं ले सकता है because it's a based out of some personal skill. But can HUF, third question is, HUF अपने सैलरी, HUF का कोई बिजनेस चल रहा है, फॉर एग्जांपल प्रॉपर बिजनेस है, और उसमें ऑब्वियसली उसके कर्ता और उसके मेंबर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और सम आउटसाइड staff or employees are also there. So yes, HUF can give the salary to karta member, and it will be fully, allowed expenditure in if HUF is operating through his business. So HUF का कोई business है, उस business में 10 employees हैं, एक कर्ता भी participate करता है या HUF के बाकी member participate करते हैं, तो they are entitled for a remuneration. But again, obviously जो remuneration लेता है उसकी hands में taxable होगा, but HUF के business में it is allowed as an expenditure. I think, sorry, there was no more. So any questions before we go to the partition or something on taxation, HUF, and then probably we'll cover the last few remaining slides also. So to summary, we have talked about Pawanji, I wanted to ask something. Yeah, sure. Suppose I got married in the year 2012, and if I do not have a HUF, and now today I'm creating my HUF, so what will be the date of incorporation of the HUF? Will it be Sure. my marriage date or आज की date से होगा? So it can be
either you can put the marriage date whenever you do the HUF declaration, or generally you could put any date. Generally people keeps 1st of April of any financial year. So for example कोई 1980s 1990 का birth, so marriage है, and it's too probably it's not worth considering इतना पुराना date. So you could put, say for example 1st April 20, 1st April 18, 1st April 19. It is up to you. Any date on or after the marriage date could be the incorporation date. सर Yeah, Sorry, one query. plus. हेलो Yeah. सर, इसमें एंसेस्ट्रल करके एक डेट होती है 0101 एंड 0001 करके, तो उसके बारे में थोड़ा सा बता पाएंगे कि वो एंसेस्ट्रल किस तरीके से रखी जाती है और किस केस में रखी जाती है? एंड 0100 क्या है सर? सॉरी, एंसेस्ट्रल डेट होती है ना सर एचयूएफ में, डेट ऑफ हाँ। इनकॉर्पोरेशन में, हम्म। वो उसके बारे में थोड़ा सा बता पाएंगे क्या कि वो किस किस केस में रखी जाती है? और बहुत सारे एचयूएफ के कार्ड्स में मैंने 0101 एंड 0001 देखा है। इतना पुराना कार्ड में देखा है सर आपने? लेटेस्ट कार्ड में देखा? हाँ, एचयूएफ के जो पुराने लोगों के खाते हैं मैंने उसमें देखा एक्चुअली। सर जनरली एचएफ का जो पैन कार्ड होता है इट इज सिमिलर टू अपने जैसे ही इंडिविजुअल, होता है, बिल्कुल जी। है ना, और प्रॉब्ली फोटो नहीं रहता है। और यस, एचएफ की इनकॉर्पोरेशन डेट आती है, वो डेट सर आप nowadays the date which you gives in the declaration, either your marriage date or any 1st April or whatever date you give, वो एक ही डेट आता है सर, एंड दैट इज क्लियरली विजिबल। आई हैव नॉट सीन 0001 पे पुराना केसेस होगा। एंसेस्ट्रल कहलाती है सर, एंसेस्ट्रल हम्म। एंसेस्ट्रल पुराने डेट ऑफ cases में है इनकॉर्पोरेशन। कुछ ऐसा। पुराने Okay. एचयूएफ जो बने हुए हैं उनमें अप्रैल वाली डेट आती है, 1 जनवरी 2001 या ऐसे कुछ आ जाते हैं। शायद पुराने जो नहीं, पैन नहीं। बने हुए हैं एचयूएफ में। अच्छा सर के कहने का मतलब देयर इज वन मोर डेट अदर Yes. देन दिस डेट। एंसेस्ट्रल कहलाती है सर वो, एंसेस्ट्रल डेट। अच्छा, आई नीड टू चेक सर, मैंने ऐसा देखा नहीं है, आई हैवंट सीन इट सर सो मेनी लॉट्स, मतलब बहुत सारे मेरे पास जो कार्ड आए हैं लोगों के। हाँ। एक्चुअली वी हैव पेन सेंटर, हमारे पास टीएनएफसी है, अच्छा और वहाँ पर बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं सभी के वापस दोबारा बनाने के लिए, तो वहाँ एंसेस्ट्रल डेट डाली जाती है, बहुत सारे डली हुए हैं, सॉरी। so maybe तो उस part I need to check, I'll check, it's a good point, very valid point. Maybe what I think is either it is created out of the partition or some, for example father के HUF की डेट होगा जिससे वो न्यू HUF इनकॉर्पोरेट होगा, maybe उसका that could be the डेट होता है सर उसमें 0101 एंड 0001। अच्छा डेट होगा 01 एंड मंथ होगा 01 एंड ईयर होगा 0001। अच्छा I need to check that sir. सर वन Yes, प्लस sir. नॉट ने हैंड रेज कर रखा है, तो इफ यू वांट टू आस्क आप भी पूछ सकते हैं सर, सर। छोटी I'll सी come back hand to it raise। sir. हाँ सर, छोटी सी क्वेरी है कि अगर किसी हम्म। ने प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी है तो एचयूएफ के करता ही सिग्नेचर सफिशिएंट होंगे या बाकी जो को पार्टनर है या मेंबर्स हैं उनकी नहीं, भी कोई भी कर involvement- सकता है सर, कोई भी कर सकता है। मेंबर, एनी मेंबर कैन डू all the first thing, all the co-partners are the member, right? So anybody can do, but it has to be through the adequate consideration. यदि आपने ऐसे ही ट्रांसफर कर दिया without remuneration, without proper amount, तो जो जिसने ट्रांसफर किया उसके हैंड्स में टैक्सेबल हो जाएगा। सर इसमें एक क्वेरी है, सेम एग्जांपल, एक एचयूएफ ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है और उसमें अभी डिस्प्यूट चल रहा है, फादर साहब ने प्रॉपर्टी माइग्रेट कर दी है विद एडिक्वेट कंसिडरेशन, वुड इट बी चैलेंजेबल बाय रिमेनिंग को-पार्टनर्स और मेंबर्स क्योंकि उनकी कंसेंट नहीं ली गई है? सर बेटर है एक कंसेंट लो, बट आई डोंट थिंक देयर शुड बी एनी, आई मीन बाकी फैमिली मेंबर्स मोर और लेस एग्री होते हैं, तो टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यदि विद एडिक्वेट कंसिडरेशन है, राइट, so there is no, that doesn't seem to be issue, but yes it is divisible because HUF में common right होता है, right, common interest होता है, all the family members also has the same right and the interest on the amount HUF has or on the capital has, so it is must or better to take the consents, it is advisable sir, otherwise फिर litigation में जाएगा points। ठीक है सर, थैंक यू। Hello. Yeah, sure, go ahead। Good afternoon, sir. Yeah.
सर मैं पूछ रहा था कि प्रैक्टिकली अपन को एचयूएफ के अंदर जब फर्स्ट टाइम कैपिटल जनरेशन करना है उसका क्या वे होगा? जैसे कि मान लीजिए मेरा मैरिज होता है अभी, तो और मैं एचयूएफ बनाता हूँ 2 साल बाद के अंदर, तो मैं जो मैरिज के अंदर गिफ्ट वगैरह आए थे उसकी एक बल्क एंट्री डाल करके और जो डिक्लेरेशन कर रहे हैं वो अपन मैरिज डेट का लेकर के और कैपिटल जनरेट कर सकते हैं? हाँ सर, वो कर सकते हैं, बट इट शुड बी विद इन द रीजनेबल लिमिट। ऐसा नहीं है कि आप 20 लाख 25 लाख मैरिज में दिखा दो, एंड टुमारो इफ समबडी आस्क्स फ्रॉम द इनकम टैक्स वी शुड हैव रिकॉर्ड कि भैया इस बंदे ने इतना दिया था, 1000 2000 5000 10,000। बट यस, ऑन द ओकेजन एनी गिफ्ट्स रिसीव्ड ऑन द ओकेजन ऑफ द मैरिज। ठीक है। और अगर सर मान लीजिए कि हम ऐसे मैरिज वाला, क्योंकि बहुत टाइम लैप्स हो चुका है, तो मैरिज के थ्रू नहीं करे तो उसके बाद में प्रैक्टिकली अपन कैसे उसके अंदर कैपिटल जनरेट कर सकते सर हैं? बात किया ना अपन ने, इफ यू सी दिस इज ऑल द पॉसिबल वेज। आपका कोई बिजनेस हो, आप कोई लोन ले लो, और आपकी कोई प्रॉपर्टी हो जो इस एचयूएफ में डाल सकते हो, और आप लोन लेके कर सकते हो, या फिर इवन आप समझिए आप गिफ्ट भी ले सकते हो। मैंने बताया ना यहाँ पे देखिए, मेंबर गिफ्ट ले सकता है। अच्छा, मोस्ट इंपोर्टेंट एक और चीज सर, मेंबर गिफ्ट दे तो वो मैंने बोला कि उसकी जो इनकम होगी वो एचयूएफ में वापस क्लबिंग हो जाएगी। लेकिन जो से फॉर एग्जांपल मैंने मेरे एचयूएफ में 5 लाख रुपए की अमाउंट डाला, उससे एचयूएफ ने 50,000 रुपीज इनकम जनरेट किया, तो वो इनकम तो मेरे हैंड में टैक्सेबल होगा, लेकिन वो 50,000 अगेन एचयूएफ यदि इन्वेस्ट करता है और से फॉर एग्जांपल उससे 10,000 कुछ इनकम जनरेट करता है, तो सिंस वो तो एचयूएफ की ही कैपिटल बन गया है, तो इनकम ऑन इनकम विल नॉट बी क्लब्ड, राइट? ओके, एप्लीकेशन ऑफ इनकम, एप्लीकेशन ऑफ क्लब्ड इनकम जो होएगा उसके ऊपर जो इनकम जनरेट हुआ वो फिर एचयूएफ का ही हो जाएगा। हाँ, इनकम ऑन इनकम विल नॉट बी क्लब्ड, ओनली द अमाउंट व्हिच हैज बीन गिवन, बेसिक इनकम विल बी क्लब्ड, बिकॉज़ वो तो फिर अब आपका एचयूएफ का पार्ट हो गया ना। दैट्स हाउ यू कैन डू। ओके ओके, ठीक है, थैंक यू। पवन जी, there are a few more hands, तो हम पहले questions ले लेते हैं, then you can continue. Yeah, let's take 2-3 more questions and then we'll cover up and then we'll again open it. Yes, yes. जो पूछ रहे हैं प्रॉपर्टीज में वो हो सकती है क्या? Sorry मैम? प्रॉपर्टी हाँ मैम, क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए आपका। I could not understand the question, but HUF प्रॉपर्टी होल्ड कर सकता है, यदि HUF परचेज कर सकता है प्रॉपर्टी, या HUF के को प्रॉपर्टी विल के थ्रू मिला है थ्रू देयर फादर और समबडी, तो वो भी हो सकता है। नेक्स्ट, एनी नेक्स्ट क्वेश्चन? सर एक क्वेश्चन है, सपोज मेरा HUF है, मी वाइफ एंड माय 2 किड्स, मतलब ये 4 ही हैं, और मेरे फादर के पास एक पोर्टफोलियो है शेयर्स का, स्टॉक्स का 20-25 लाख रुपए का। कैन ही गिफ्ट दिस पोर्टफोलियो टू HUF? सर जो भी वैल्यू होगा ना सर वो टैक्सेबल होगा। 50,000 इस कैटेगरी में फॉल करेंगे सर। आप रिलेटिव ऑफ मेंबर है ना, आपके दादा दादी, आपके मदर फादर, वाइफ्स के मदर फादर, इट विल बी टैक्सेबल एक्सीडिंग 50,000। बट गिवन दैट यदि आपकी कोई अदर इनकम नहीं है, तो जैसे मैंने बताया 2.5 लाख रुपए तक एग्जम्प्ट हो जाएगा। यदि आपने ATC में भी इन्वेस्ट कर रखा है तो 4 लाख तक एग्जम्प्ट हो जाएगा, 2.5 प्लस डेट। यदि आपने मेडिकल भी ले रखा है तो इट विल बी टैक्सेबल। और अगर खुद के नाम से भी कुछ पोर्टफोलियो, तो वो उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते, मतलब इट्स नॉट एडवाइजेबल, क्योंकि टैक्सेबल ही रहेगा वो। इनकम क्लबिंग हो जाएगा सर, बट उस इनकम पे इनकम नहीं। एक दूसरा इसमें कि जैसे आपने बोला कि HUF कोई भी बिजनेस कर सकता है, बट कैन नॉट डू एनी प्रोफेशन लाइक टीचिंग या फिर ट्यूशन सेंटर, इस टाइप से नहीं कर सकता। हाँ, टीचिंग, डॉक्टर, प्रोफेशनल, CA, एडवोकेट, जो स्किल है ना सर, क्योंकि बिकॉज इट इज स्किल व्हिच आई हैव, नॉट द कॉमन। कई लोग जैसे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले लेते हैं HUF के नाम से, तो दैट्स रॉन्ग। सर वो चल सकता है, बिकॉज इट्स अ बर्डन ऑन प्रूविंग इज ऑन यू। व्हाट आई हैव सेड इज ऑन एडवाइजेबल। आप समझो आप म्यूचुअल फंड बिजनेस रन कर रहे हो, AMC कर रहे हो, उसमें 5 लोग इन्वॉल्व है, राइट? उसमें आप सैलरी भी है, उसमें कमी, तो वो इट कैन बी जस्टिफाइड। लॉट ऑफ पीपल डज इट। अच्छा, ठीक है। बिजनेस मॉडल हो गया ना कोई अगर सपोज कोई ट्यूटोरियल रन करना है, बट तो वो क्या रन कर सकता है, जिसमें हम टीचर को भी अपॉइंट कर लेंगे, उनको सैलरी देंगे, या इस टाइप से कर सकता है? हाँ, वो सर फैक्ट्स देखने पड़ेंगे सर। सर लाइक हाउ डू वी डू, व्हाट इज द मोडस ऑपरेंडी, राइट?
कैसे बिजनेस कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या डॉक्यूमेंटेशन है, कहाँ एनरोल्ड हो, वो इम्पोर्टेंट है। फाइन। और बिजनेस का नाम क्या उसमें HUF लगाना जरूरी है या कोई भी नाम नहीं हो नहीं, सकता कोई जरूरी नहीं है, आप अपना कोई भी नाम लगा सकते हैं। पैन कार्ड में HUF लिखा हुआ आएगा, बिजनेस कैन बी इन द नेम ऑफ एनीथिंग। अच्छा, मतलब सपोज अगर जैसे हम कोई ट्यूटोरियल खोलते हैं, सपोज ABC आप कोई ट्यूटोरियल, भी फैंसी नाम रख लो सर। ठीक है, अब उसका पैन कार्ड लेकिन HUF का लगेगा उसमें, ऐसा? हाँ। मतलब अगर उस वो जो अकाउंट में जिस पैसा लेंगे वो उस बिजनेस के नाम से पैसा नहीं होगा, HUF के अकाउंट में हम पैसा लेंगे, ऐसा? करेक्ट। मतलब कोई भी पेमेंट आ रहा है तो वो आप HUF के नाम से, अमित माथुर HUF के नाम से आप पेमेंट करिए हमें, लाइक दैट। बट वो एक केवल एक नाम है कि हाँ ये वाला बिजनेस चल रहा है, बट उसका कोई अकाउंट नहीं खुलेगा उस बिजनेस का। नहीं, बिजनेस का अकाउंट तो खुलेगा ना सर। वो प्रोप्राइटरशिप बिजनेस हो गया क्या एक तरह से? नहीं, वो ट्रेड नेम एंड बिजनेस नेम अलग-अलग हो गए ना। हाँ, ट्रेड नेम एंड बिजनेस नेम अलग-अलग हो गए। नहीं, प्रोप्राइटरशिप कहलाएगा क्या वो बिजनेस? नहीं, HUF का बिजनेस कहलाएगा सर, प्रोप्राइटरशिप का नहीं होगा, HUF का होगा। ओके। जैसे कंपनी करती है ना, वैसे ही होगा। नहीं, बिजनेस का अकाउंट खोलने का पर्पस क्या है? क्योंकि फिर पैसा तो जो भी हम पेमेंट ले रहे हैं वो तो HUF के नाम में ले रहे हैं। नहीं सर, बैंक खोलती है ना, आपने बताया, जैसे मैं आज अप्रोच करूं कि मेरा इस नाम से HUF का बिजनेस है, तो बैंक विल ओपन, राइट? मैं डॉक्यूमेंटेशन करूंगा, सारी चीजें मेंटेन करूंगा। हाँ, एक्चुअली वो उसमें होगा ये कि ट्रेड नेम का जो आपका GST या गुमास्ता होगा उसके अनुसार उसका अकाउंट खुलेगा। एंड जो उसका HUF का जो लीगल नेम होगा वो लीगल नेम वो अलग होगा। लीगल नेम और ट्रेड नेम अलग-अलग हो सकते हैं। उसको करता डील करता है। आप GST में सर फर्म का नाम अलग रख लो, आपका ट्रेड नेम अलग हो जाएगा, लीगल नेम अलग हो जाएगा। करेक्ट। मतलब बिजनेस ओनर इज HUF, वो बिजनेस की जो भी इनकम है वो HUF अपनी ITR में भरेगा, ऐसा? यस, करेक्ट। Okay, Lalit ji wanted to ask something. आप सर, हेलो, आवाज आ रहा है सर? हाँ जी। हाँ बोलिए सर। मैं पूछ रहा था HUF के कर्ता की डेथ हो जाती है तो दूसरा सीनियर मोस्ट मेंबर वो बन जाता है। फीमेल मेंबर भी बन सकता है ना इसमें? बन सकता है सर, कोई इशू नहीं सर। आएगा ना? सीनियर मोस्ट मेल मेंबर बनेगा या फीमेल मेंबर बनेगा? नहीं, पहले तो सर मोस्टली मेल मेंबर ही रखता है, बट देयर इज नो बाउंडेशन। मोस्टली सीनियर फैमिली मेंबर होता है, वही बनता है, बट फीमेल मेंबर इज नॉट प्रोहिबिटेड। इसके लिए सर क्या डॉक्यूमेंटेशन रहेगा फिर? सो वो तो आपको पूरा वो फिर अपडेट डीड वगैरह वो सारी चीजें अपडेट करवाना पड़ेगा कि हमारे HUF में। सर आई थिंक कि उसमें फिर से डिक्लेरेशन वही डीड रहता है ना, स्टैम्प पेपर पे वो बन के करता चेंज हो जाता है। करता चेंज होता है, उसका डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करना पड़ेगा क्या? नहीं, उसी से हो जाता है ना, वो डीड से ही हो जाता है। डीड से हो जाएगा क्या? हाँ, वो डीड एंड पेन का कॉपी लगा के जब वापस अपन उसको रीअप्लाई करते हैं पेन को, तो वहाँ ऊपर करता चेंज हो जाता है ऑटोमेटिक। हाँ, वो अपडेट हो जाता है सर, डॉक्यूमेंटेशन। यस सर। वो डेथ के कितना टाइम तक करना कंपलसरी है? ऐसा कुछ नहीं है सर, एज सून एज यू डू, ऐसा कोई लॉ में तो कहीं लिखा हुआ नहीं है। बट आप समझिए, डेथ होगी तो ऑब्वियसली इट शुड बी इमीडिएट, राइट? बिकॉज वो लोग मेंबर ही नहीं है, तो फिर शुड बी डन। ठीक है, थैंक यू सर। नो प्रॉब्लम। आई थिंक लास्ट एक स्लाइड मोडस ऑपरेंडी थोड़ा वापस बताने की कोशिश करें, क्या मोडस ऑपरेंडी है, मतलब उसके बाद क्या करना है, मतलब किसके बाद सर? लाइक आफ्टर डेथ टू चेंज द कर्ता। सर कहाँ पे रजिस्टर्ड है, उसने क्या बिजनेस किया हुआ है, कहाँ पता नहीं उसने प्रॉपर्टी है, वो सब एक बार देखना पड़ेगा। बट जहां पे भी एलिजिबल एरियाज है, जहां पे भी अफेक्टेड एरियाज है, वहां सब जगह आपको अपडेट करवाना पड़ेगा, सब जगह इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी आपको, उसका डेथ सर्टिफिकेट्स, व्हाटएवर वैलिड डॉक्यूमेंट्स, फॉर एग्जांपल बैंक, GST, इनकम टैक्स, राइट? आई डोंट नो, शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स, इन्वेस्टमेंट्स, जहां पे भी है। बिफोर दैट जो डीड बनेगी उसके लिए पूछ रहा हूँ खाली, वो तो इन्फॉर्मेशन इज अनदर पार्ट। जो डीड बनेगी उसमें कितने मेंबर्स इन्वॉल्व होंगे, हु विल बी द ऑल द सिग्नेटरीज एंड सारे जो बाकी बचे हुए लोग हैं ना, सारे होंगे। मेल एंड फीमेल मेंबर्स विल बी कवर्ड और नॉट? ऑल दे विल बी कवर्ड। वो जो भी आपके ओरिजिनल में जो थे, उसके बाद सर आपने डीड तो एक बार बना दी स्टार्टिंग में ना, बाद में ऐसा जरूरी नहीं है ना सर। फॉर एग्जांपल किसी का बर्थ हो गया तो ऐसा नहीं है कि वो डीड में अपडेट कराओगे तभी वो माना जाएगा, ऑटोमेटिक है ना, इट्स ऑटोमेटिक क्रिएशन। सो
इट इज नॉट नेसेसरी कि भैया वो है, ठीक है, बैंक माइट आस्क और समबडी माइट आस्क, उसके लिए आपको डॉक्यूमेंटेशन वर्किंग करना पड़ता है, बट लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से इफ somebody takes the birth, they are automatically part of the HUF, they even if they are not mentioned in the any sort of documents, because it's So they will automatic be election of the law. they all will be the signatory for the deed on the deed. वो सर यदि मेजर है तो है, माइनर है तो नहीं। Okay. So even a conceived baby, right? Yes. Conceived baby is a part of HUF. Correct. पर सर सिग्नेटरी तो ओनली करता ही होगा ना? नहीं, ये यदि वो कोई ऑथराइज करता है और करता है एंड ऑल दोस, आप बैंक में जाएंगे ना तो सर सबसे कंसेंट मांगेंगे वो लोग। करेक्ट। Partition of HUF, I'll cover. There are not much time. I think most of the queries has been done, but still open for any more queries once I cover it off. Partition बहुत बेसिक कंसेप्ट है कि अपन ने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि वो कौन मेंबर है, कौन को-पार्टनर है। सर आप स्क्रीन शेयरिंग वापस से कर दीजिए। हाँ, so only co-partner can demand the partition. Most important thing, member cannot. Only co-partner can demand the partition. Let me go through the slide, and then if there are further more queries, there can be two types of partitions: partial partition and full partition. Income Tax Act may partial partition is not recognized. It is taxable, so it is not advisable to do the partial partition. It is always advisable to do full partition, physical division of the property, not the division of income. So these are the things before partition of HUF. Co-partners के क्या राइट होते हैं और मेंबर्स में co-partner right of maintenance or right co-partner, as I said, demand partition. Member is only having right maintenance, they cannot demand partition. During the partition of HUF, co-partner सब co-partner का equal sharing रहेगा, right to receive equal share. Members right to receive asset, reasonable assets. However, important, wife of karta, spouse or widow mother has right to receive share equal to the co-partner. आपकी wife का equal, even if she is a member, it is an exception, she will be entitled as benefit in terms of the benefits during the partition exactly same as a co-partner can receive. So wife के पहले केस में equal right रहेगा। और विडोड मदर है, यदि फादर करता थे और उसका सन HUF अब बन गया है, तो उनकी मदर का जो फादर की स्पाउस थे उनका भी इक्वल राइट रहेगा। In terms of even if they are a member, because they are not co-partner, because they have not taken the birth in the family, but during the partition they have the equal right as if the co-partners. That's about it. Any more queries, we can take it in the next couple of minutes. सर जो फर्स्ट स्लाइड्स थी ना सर, हेलो सॉरी, जो फर्स्ट स्लाइड्स था ना अपना, जिसमें अपने इंडिविजुअल एंड HUF एंड तीन चीजों को एक साथ रखा था, एक्चुअली अभी भी वहाँ हमें बहुत सारे डाउट्स हैं कि किस तरीके से वो बेनिफिट हम चलो उस स्लाइड पे जाते हैं। हाँ, वो थोड़ा क्लियर हो जाएगा ना तो मजा आ जाएगा। ये वाला ओके सर, इस वाले केस में नाउ सिंस यू ऑल अंडरस्टैंड, लेट मी टेक दिस स्लाइड अगेन। फर्स्ट केस है मिस्टर एक्स इज ओनली इंडिविजुअल, इसका HUF एग्जिस्ट नहीं करता है ना, तो इस केस में मिस्टर एक्स के 12 लाख रुपए सैलरी की इनकम है, 4 लाख रुपए खुद की रेंटल इनकम है ओन प्रॉपर्टी से, उसकी फैमिली मेंबर ने भी किसी ने उसको इनहेरिटेड प्रॉपर्टी दिया था, तो वो मिस्टर एक्स के नाम पे है, तो वो 4 लाख रुपए और इनकम है, और इसको कोई गिफ्ट्स की इनकम मिली थी, है ना, वो भी इसके अकाउंट में टैक्सेबल है, और एक मिस्टर एक्स अपना बिजनेस भी रन करता है। ये वाला केस फॉरगेट अबाउट दिस टू, फर्स्ट पे फोकस कीजिए। ये है मिस्टर एक्स के पास सैलरी इनकम है, रेंटल इनकम है, FDR इनकम और बिजनेस इनकम है। ये सब मिला के मिस्टर एक्स की इनकम 28 लाख रुपए हो जाती है। अब उसमें मिस्टर एक्स सिंस अकेला है तो उसको इट्स प्लेन वनीला केस है ना, मिस्टर एक्स 80C में और 80D में मिला के मैं मानता हूं कि 1.5 लाख उसमें इन्वेस्ट किया, 20,000 उसमें, 1,70,000, तो नेट इनकम 26 लाख और उसका टैक्स 6,22,000 रुपए हो गया। ये प्लेन वनीला केस है। अब नाउ
what if Mr. X has an HUF, right? तो as we now know कि सैलरी इनकम मिस्टर एफ के हैंड में ही टैक्सेबल रहेगी 12 लाख, तो मैंने इसी के हैंड में टैक्सेबल किया, यहाँ एनए है बिकॉज ये दोनों साथ में चलेंगे, राइट? सैलरी obviously only taxable in the hands of Mr. X HUF. only on यहाँ पे Mr. X alone है, यहाँ पे HUF इनकम है. ओके है ना? तो Mr. X alone है तो Mr. Hands के हैंड में, आई थिंक ये दिख नहीं रहा होगा सही. हाँ, तो Mr. X के हैंड्स में 12 लाख रुपए आएंगे, HUF में नहीं आ सकते. मिस्टर एक्स की खुद की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, उसने खुद ने परचेज की थी, तो 4 लाख रुपए जो उसकी इनकम है वो मिस्टर एक्स के खुद के वाले में ही आएगी, एचएफ में नहीं आएगी. रेंट इनहेरिटेड प्रॉपर्टी का रेंट है, उसने यदि उसके पास एचएफ होता तो एचएफ के नाम पे लेता तो ये 4 लाख रुपए एचएफ में चले जाती, उसके हैंड में टैक्सेबल नहीं रहती. एफडी अगेन यदि ये सर थोड़ा एक बार फिर बताइए ना प्लीज. रेंट सॉरी रेंट वाला फिर से एक बार बताएंगे प्लीज. सर यदि इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है, फादर ने विल में गिफ्ट किया है ना, फादर की प्रॉपर्टी है, वो मिस्टर एक्स ने फर्स्ट वाले केस में अपने नाम पे ली है, सेकंड वाले केस में एचएफ के नाम पे ली है. इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है, कोई फैमिली की प्रॉपर्टी है. हाँ, तो यानी कि उसने एचएफ को दे दिए से. यस, गिफ्ट बाय वे ऑफ विल. ओके 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 ओके, ठीक है ना. तो कोई आपकी फैमिली की प्रॉपर्टी है ना, वो आपने मिस्टर एक्स के अकाउंट में नहीं लेके एचएफ के नाम पे रजिस्ट्री करवा लिया आपने. ठीक है ठीक है. Okay. तो अब यहाँ पे तो एचयूएफ था ही नहीं फर्स्ट वाले केस में, तो मिस्टर एक्स ही था सब जगह. यहाँ पे अब दोनों चल रहे हैं जी, है ना. तो इनहेरिटेड प्रॉपर्टी, सिमिलरली एफडी, बाकी बिजनेस आपको पता ही अपने. तो ऐसे करके अब देखिए टोटल इनकम तो सेम है, 1480 प्लस 1330 इज इक्वल टू 18. सर अभी इसमें थोड़ा ऊपर, जैसे कि आपने बताया कि ये जो कोई उसके पास अमाउंट था जिसका इंटरेस्ट आ रहा था, वो तो 50,000 तक ही केवल आपने कहा कि दे सकता है वो, इसके अलावा आगे नहीं देगा या देगा? नहीं सर, ये एक अजम्पशन है कि जो सर हो सकता है मिस्टर एक्स के पास में खुद की और भी सेल्फ जनरेटेड इनकम से भी एफडी जनरेट कर रखी हो, तो वो तो डाइवर्ट हो नहीं सकती है. इस केस में ये अज्यूम किया गया है कि इस मिस्टर एक्स के पास में जो गिफ्ट्स आते थे या मैरिज के टाइम पे आए थे या कोई और 50,000 तक रुपीस एग्जाम्प्ट है ना, तो उस केस में मिस्टर एक्स यदि वो गिफ्ट्स एचयूएफ में लेता तो वो टैक्सेबल नहीं होता. ओके, right, but if there are any more FDs in the hands of Mr. X, obviously that will be taxable in the hands of X only. Okay. यहाँ पे ये है कि you can show it, right, कि मेरे को हर साल एचएफ में इतना गिफ्ट मिला, ये मिला, तो उससे आपने एफडीज इनकम इंटरेस्ट अज्यूम किया हुआ है, तो वो है. ये आप देखिए नीचे assumption लिखी मैंने, सारा ने इंटरेस्ट ऑन एफडीज अज्यूम टू बी द कैश गिफ्ट्स. सो आप देखिए सर, ग्रॉस टोटल इनकम इज सेम, है ना. 80C में आप यू डू बोथ 170 170 इन बोथ, तो आपने 340 कर दिया है, तो नेट इनकम इज डिफरेंट नाउ, 1310 एंड 1160. तो टैक्स आएंगे तो डिफरेंट, तो टोटल टैक्स का बेनिफिट कितना हुआ? 622 माइनस बी माइनस सी, इन दोनों का टैक्सेशन. यस यस. एक चीज और सर, आपने बताया कि जो एचयूएफ है ना, वो लोन का बिजनेस कर सकता है क्या? नहीं, बिजनेस नहीं कर सकता. एचयूएफ लोन ले सकता है और दे सकता है, मैंने ये बोला. तो किसी को भी दे सकता है आपने कहा, एंड इंटरेस्ट भी रिसीव कर सकता है. इंटरेस्ट इट इज एडवाइजेबल सर, रिसीव कर सकता नहीं, लेना चाहिए. बोरोविंग्स शॉर्ट या लॉन्ग, मेंबर या नॉन मेंबर. मेंबर डालेगा तो सर वो मैंने बताया कि आपका वो क्लबिंग हो जाएगा ना, गिफ्ट से वो. लेकिन यदि आप दूसरा करते हैं, किसी नॉन मेंबर से लेते हैं, तो इट इज सजेस्टेड कि आप उसको इंटरेस्ट पे करें और उससे बिजनेस करें. जो मेंबर्स नहीं है उन्हें भी लोन ले सकते हैं सर, बैंक से लोन ले सकते हो. एचयूएफ बैंक को लोन देता है, ये बिजनेस इनकम कर रहा हूँ, एचयूएफ ने बैंक को लोन दे दिया. नहीं सर, अभी जैसे कि ये बताया था ना आपने कि वो किसी अदर पर्सन को भी एचयूएफ लोन दे सकता है. हाँ, दे सकता है, उसके लिए हाँ, वो एचयूएफ कैन गिव एंड टेक द लोन्स. एचयूएफ लोन देता है तो इट इज एडवाइजेबल कि एचयूएफ उस पे इंटरेस्ट ले यदि वो खुद की कैपिटल से है. सर एक क्वेरी है. हम दो सिबलिंग्स हैं, मान लीजिए 2 भाई हैं, दोनों की इंडिपेंडेंटली मैरिज हो चुकी है और दोनों थोड़ा सा लाउडली बोलेंगे. हाँ सर, 2 भाई हैं हम लोग, दोनों हम मैरिड हैं सपोज, दोनों की अलग अलग एचयूएफ बनी हुई है और हमारी पर्सनल एफडीआर चल रही हैं जो क्वाइट हैंडसम अमाउंट फेच कर रही हैं इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट. तो इट इज एडवाइजेबल कि मैं उनको 2 लाख रुपए का ट्रांसफर करता हूँ और कुछ पीरियड के बाद वो मुझे 2 लाख का ट्रांसफर दे देते हैं एचयूएफ में डाइवर्ट करने के लिए. सर यदि मेंबर, ये देखिए सर, ये वाला, क्योंकि उनकी एचयूएफ में मैं मेंबर नहीं हूँ ना.
मेरे ब्रदर की एचयूएफ में मेंबर नहीं हूँ ना, वो मेरी फर्म में हाँ HUF तो में सर वो member है। 50,000 रुपए हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं सर। 2.5 लाख रुपए तक तो आप कर ही सकते हो, बिकॉज इवन 50,000 रुपए तक एग्जम्पशन है, बट 2.5 लाख रुपए तक तो एचयूएफ का टैक्सेशन है ही नहीं। और अगर वहां पे डिडक्शन भी क्लेम करते हैं तो 4 लाख तक वो बेनिफिट ट्रांसफर हो जाएगा हाँ, 2.5 प्लस मैक्सिमम। 1.5 का बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं, ठीक है सर, प्लस मेडिकल प्लस एटीजी व्हाटएवर यू डू। ठीक है सर, थैंक यू। I think most interactive session I've seen in the HF. Probably I don't know from your side, but a lot of genuine questions has come, and we're going one by one. Pretty clear, pretty understandable type of a thing. Thanks a lot, sir. Yeah. Thank you, Pawan. It was a very wonderful was session. interactive. Everyone will share the PPT used in this session at the end of the session. So I request all members to kindly share your mail IDs and number in the chat box. हम आपको ये PPT शेयर कर देंगे और आगे फ्यूचर में भी हम लोग जितने भी वेबिनार्स करेंगे उसकी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। And if you still have any questions, आप अभी रख सकते हैं, and we can have some 5-10 minutes more. I think Pawan ji has very elaborately covered the topic of HUF. It is a very vast topic. और जितना हम इसके अंदर डीप डाइव करते हैं उतनी नई नई चीजें निकल के आती हैं बाहर। लेकिन सर ने काफी सारे पॉइंट्स डिस्कस किए हैं आज जो काफी कह सकते हैं। दीप खरे सर वांट टू आस्क समथिंग। यस सर, प्लीज कंटिन्यू सर। Thank you, Pawanji. I could not join the beginning, but I got most of it. Unfortunately, I am a salaried man, no property, no rent income and all that. But still, because of income of the tax, the salary income, the tax has to be around 30% range it goes. So anything in short, if you can suggest, Mr. Alok can suggest me later, will be very kind of you. Thank you. Yeah, sure, we'll do that. We'll connect Deepji. Thank you, sir. Yeah, most welcome. Thank you. सर एचयूएफ पे पोस्ट ऑफिस ने एचयूएफ के इंटरेस्ट को कोई पर्टिकुलर 2 साल पहले या 4 साल पहले कि एचयूएफ के ऊपर इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा, ऐसा कुछ रेगुलेशन रूल्स निकाले थे। और बैंक्स ने तो वो एचयूएफ के इंटरेस्ट के जितना भी बैलेंस था उस अकाउंट में, लाइक एफडी हो या पीपीएफ अकाउंट हो, तो उन्होंने पेमेंट वापस कर दिया था। परंतु पोस्ट ऑफिस ने वो पेमेंट अपने पास रख रखा है एचयूएफ के नाम पे। अब 5 साल बाद लाइक समझिए 2016 में शायद वो कोई रेगुलेशन गवर्नमेंट ने निकाला था, आरबीआई ने या गवर्नमेंट ने, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने। अभी अपन उसमें वो पासबुक में सब इंटरेस्ट की एंट्रियां कर रहे हैं अभी तक। अब जब पेमेंट लेने जा रहे हैं तो वो इंटरेस्ट रिवर्सल डाल रहे हैं। अगर अपने पास कोई ऐसा राइट है कि अगर आपने इंटरेस्ट तो बैंक पीपीएफ अकाउंट में क्रेडिट्स किया है, पोस्ट ऑफिस की बात कर रहा हूँ, और जब वो पेमेंट देने जा रहे हैं तो वो इंटरेस्ट रिवर्सल करके पेमेंट उस पीरियड का पेमेंट काट रहे हैं, तो क्या एचयूएफ के पास कोई ऐसा राइट है कि वो पोस्ट ऑफिस से लड़ सके कि आपने जब इंटरेस्ट की एंट्री की है तो आप हमको इंटरेस्ट का पेमेंट करें उस पार्ट का? जब से ये गवर्नमेंट ने रेगुलेशन लाया है कि एचयूएफ के ऊपर इंटरेस्ट का प्रोविजन नहीं किया जाएगा पीपीएफ अकाउंट में। तो पुराना अमाउंट आप बोल रहे हैं, पुराना अमाउंट ऐसा? सर सपोज कीजिए 2016 में मेरा 10 लाख रुपए का बैलेंस पीपीएफ में पड़ा था, इंटरेस्ट जुड़ के। 2016 से 2000 समझिए 21 तक मेरा 10 लाख के ऊपर 4 लाख रुपए और इंटरेस्ट बन गया। परंतु गवर्नमेंट आरबीआई का कोई गाइडलाइन ऐसा आया था कि आपको उसके बाद उस पर्टिकुलर पीरियड के बाद आप इंटरेस्ट पीपीएफ अकाउंट में एचयूएफ पे नहीं दे सकते हैं। परंतु पोस्ट ऑफिस की गलती है कि अगर आप इंटरेस्ट नहीं दे सकते हो तो आप पेमेंट वापस, पार्टियों को पेमेंट वापस कर दो। सही बात है। तो उन्होंने वो भी नहीं किया, पैसा भी अपने पास पड़ा रखा और पासबुकों में इंटरेस्ट भी चढ़ाते गए। अब जब पार्टियां पेमेंट लेने जा रही है तो वो इंटरेस्ट रिवर्सल डाल के और उनको पेमेंट काट के कर रहे हैं। अनलाइक बैंक्स ने क्या किया, उस दिन आपको एक नोटिस दे दिया कि भाई आपका पैसा आज से फ्रीज हो रहा है तो आप पेमेंट लेके जाइए, या उन्होंने पेमेंट आपके अकाउंट में ट्रांसफर भी कर दिया, सेविंग अकाउंट में, पीपीएफ से सेविंग अकाउंट में। सर तो कोई राइट ऐसा है किसी भी लॉ में
कि एचयूएफ उस पैसे को सर क्लेम होना ही कर सके। चाहिए मेरे हिसाब से। तो ऐसा बैंक क्या बोल रहा है अभी, आपको डिनाई कर रहा है क्या? बैंक नहीं कर रहे हैं, बैंक तो पैसे ही वापस दे दिए थे। जो पोस्ट ऑफिस है वहां पे कोई भी अकाउंटिंग इस टाइप की नहीं है। बैंक उनके पास जब आप पैसा लेने जाओगे तब आपको वो बोलेंगे ये आपका इंटरेस्ट हमने चढ़ा दिया, अब ये रिवर्स वापस कर रहे हैं 4 साल। अच्छा अच्छा, ये नॉलेज किसी एजेंट्स वगैरह को भी प्रॉपर नहीं थी, और ना इसको वाइडली गवर्नमेंट ने इतना पॉपुलराइज किया कि कोई अब जो एचयूएफ के अंदर पैसा पड़ा है, आदमी सोचता है पैसा पड़ा है पड़ा रहने दो। जो अकाउंट 16 साल के बाद बंद हो गए वो पड़े रहे पैसे उसमें, बोला ब्याज आ रहा है। एजेंट भी बोल रहे थे साहब आपके पास तो ब्याज आएगा जब तक, और एंड जब आप पैसा लेने गए तो आपको 4 साल का 5 साल का ब्याज वापस रिवर्स कर दिया। तो सर मैं कोई ऐसा लॉ, एक बार आप जो रेगुलेशन बता रहे हैं वो शेयर कर सकते हैं क्या मेरे को, इफ इट इज इन योर नॉलेज? मैं आपको पर्सनल नंबर पे शेयर कर दूंगा। अभी तो मेरे एक बार पास कुछ शेयर नहीं कर है। देना, मैंने चैट बॉक्स पे पिंग किया है, आलोक जी मैं को कर देना आलोक मेरे के को। थ्रू, आलोक का मैं हाँ। ब्रदर ही हूँ, तो मैं आलोक के अच्छा थ्रू ही आपके पास पूरी डिटेल भेज दूंगा। ठीक है आलोक, तो एक बार हाँ आलोक जी वो जी जी पापा वाला ही है ये। ठीक है मैं तो शेयर कर पीपीएफ दूंगा में जो डिटेल्स। पैसा लेने गए तो उन्होंने सब रिवर्ट कर दिया था एक्चुअली, राजू को भी ध्यान। हाँ तो देख लेना एक बार। ठीक। अपन उसका हाँ जो भी वहां से आया है ना, अपन उसका एक बार आपको साहब को भेज देते हैं। बिल्कुल। हाँ आप जो भी ठीक है। फैक्ट्स है ना वो एक बार शेयर कर देना यस तो हो यस जाएगा। यस यस सर, यस सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर छोटा सा क्वेश्चन था कि जैसे लाइफ इंश्योरेंस वगैरह के प्रीमियम्स को भी आपने कहा था कि एचयूएफ में उसको इनबिल्ड कर सकते हैं अपन, तो एचयूएफ में जो भी सदस्य हैं वो कोई भी अगर लाइफ इंश्योरेंस लेता है तो उसका प्रीमियम एचयूएफ अकाउंट से दे सकते हैं ऐसे? सर। हाँ मतलब आप एचयूएफ के कर्ता या फैमिली मेंबर के नाम पे कोई एलआईसी पॉलिसी लेते हैं और उसका पेमेंट आप एचयूएफ के अकाउंट से करते हैं तो वो उसका बेनिफिट एचयूएफ में ले सकते हैं। जी ओके सर, ओके सर। एचयूएफ को ईएलएसएस का बेनिफिट रहेगा अवेलेबल? कौन सा? ईएलएसएस, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम में? हाँ सर प्रीटी मच। ठीक है सर। एक पॉइंट यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, जो 87A का रिबेट मिलता है इंडिविजुअल को, सिर्फ वो अवेलेबल नहीं है एचयूएफ, वो अवेलेबल नहीं है। अदर देन दैट 80C, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, ATG, ऑल आर अवेलेबल। Yes. Okay, thank you. Thanks everybody for the joining. If you have further more queries or somebody probably Anup ji को या मेरा नंबर पिंग कर दिया chat box में, can always reach out. Right. So I would like to thank Pawan ji for taking our time on Sunday. Sunday is basically a family time. But since we are professionals, so every day, like we are always working and we are always there to uplift the knowledge of our members and the fraternity and the people around. So from the entire team of CD Financials, I thank you, Pawan ji, for this wonderful session. Most welcome. And I would also like to thank all the participants for joining us for this session and making this successful. And Pawan ji has shared his number on the chat box. Even I have shared my number. तो अगर किसी का भी कोई query रह जाता है या personally connect करना चाहते हैं हमसे, you can always reach out to us and we are available. And thank you Pawan ji for the joining us. Most welcome. Thanks for allowing me. And definitely in the near future we will take some more topics, interesting sessions for the participants. Yeah, definitely. Thank you, sir. Thank you. So thank you everyone for joining us, and kindly share your number and mail ID in the chat box so that we can share the PPT with you. And it is an initiative that we have started, and we'll be following this every Sunday. We'll be coming up with some more sessions on this, so you can reach out to us. And thank you again for joining in. Thank you. So I'm Alok Sethi, and now signing off this meeting. Thank you.